show that the transformation W is equal to root Z. It maps the domain in the Z plane to the right of the line X is equal to A into the interior of a hyperbola in W plane. इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का क्या मतलब हम समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जी, एक प्लेन पर आपके पास बता रहा है एक लाइन है, तो वही लाइन दूसरे प्लेन पर अगर जाता है तो वह हाइपरबोला में कन्वर्ट हो रहा है। दैट पार्ट यू हैव टू शो इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज W इज इक्वल टू रूट जेड। सबसे पहला काम तो ये ले लो, W इज इक्वल टू आपके पास रूट जेड हो गया। अब इसको W स्क्वायर इक्वल टू जेड कर दो। W इक्वल टू क्या होता है, U प्लस आयोटा V, इसका स्क्वायर, दिस इज x प्लस आयोटा y। ओपन कर दो इसको, U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर प्लस का 2UV आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। कंपेयर द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके पास में x इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस का V स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू U। दो पार्ट आपके पास में आ गया। फर्स्ट वन, the real part x is equal to u square minus v square, and the second part, that is y is equal to 2uv. Now let x is equal to lambda, x is equal to lambda, then u square minus v square equal to lambda is mapped into hyperbola. When I am supposing x is equal to something that is a constant, then it will be mapped into the hyperbola. And if let lambda take all the values from a which should be greater than 0 to infinity, the entire area in Z plane to the, then it becomes u square minus v square. When you are supposing x is equal to lambda or you are supposing x is equal to a, तो आपके पास में u square minus v square is equal to a. U square minus v square is the equation of the hyperbola. We know that there are three types of equation. First one, it is a parabola, it is a hyperbola, and it is a ellipse. Ellipse क्या होगा, जब आपके पास में u square plus का v square आपके पास आ जाएगा और equal to u square upon a square plus v square upon का b square equal to 1. That is the equation of the ellipse. If there is a minus between the u and v, that is the hyperbola, and parabola it is called y square equal to 4a या x square is equal to 4ay, जो भी आपके पास है। ये तीन इक्वेशन आपको बनता है। So first of all, when the function is given to you w equal to root z, change w into u plus iota v and change z into z to x plus iota y. Then compare the real part and the imaginary part. You get x is equal to u square minus v square and y is equal to 2uv. Now these two equations are given to you. From this, you have to form an image in the z plane and the w plane. So what will the image will form? If I am supposing x is equal to lambda, lambda means a point. A point will always show a straight line. That's why in after second line I have used lambda equal to a. पहले तो मैंने x is equal to lambda, फिर मैंने कहा let lambda takes all the values from the a which should be greater than 0 to the infinity. Now I will form an image. अब मैं image को बनाऊंगा, वो image कैसे बनेगा वो देखिए आप। I will form an image. तो मैंने x का मतलब एक तरफ आपके पास ये आ गया w z प्लेन, z प्लेन का मतलब ये x और ये y, ये आपके पास पॉइंट हो गया 1 2 3 जो कुछ भी है। तो मान लिया यहाँ पर ये a आ गया, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया x इज इक्वल टू, ये आपके पास में इंफिनिटी टाइम चला गया। इसको कहते हैं z प्लेन आपके पास।
This is called the Z plane. Similarly, if this is converted into the W plane, ये अगर W plane आपके पास आ गया, if it is converted into the W plane, then what it will be formed? तो वो आपके पास में हाइपरबोला कहा हुआ है. तो हाइपरबोला का मतलब ये हो गया, इस फॉर्म को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये बना. तो स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड द जेड प्लेन. जेड प्लेन कह रहा हूँ, डब्ल्यू प्लेन. दिस इज द डब्ल्यू प्लेन. यहाँ आपके पास में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपके पास में, और यहाँ पर x इज इक्वल टू ए आपके पास में. सो दिस इज द डब्ल्यू प्लेन. तो व्हेन दिस लाइन ट्रांसफर इनटू दिस वन, इट बिकम्स द हाइपरबोला. और वो आपने देखा होगा. आप कहोगे सर आपने ये x इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किया, तो y इज इक्वल टू 2uv में क्यों नहीं किया? ठीक है, वहां भी कर लेते हैं. तो y पर मैंने y को फिर मैंने b पॉइंट दे दिया. मैंने अगर y को b पॉइंट दे दिया, इसका मतलब ये हो गया uv 2uv इज इक्वल टू b. तो ये इटसेल्फ ये तो बन गया लाइन आपके पास में, और इसको कहता है रेक्टेंगल हाइपरबोला. दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो अगर मैं y का आपके पास में ही है, तो y का लाइन क्या हो जाएगा? ये पैरेलल टू द x बन जाएगा. वहां पर भी आपके पास में सेम यही एज इट इज बनेगा. सो वी हैव टू फॉर्म द इमेज फ्रॉम द z प्लेन टू द w प्लेन. मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ हाउ यू विल फॉर्म एन इमेज. फर्स्ट, when the function is given to that w is equal to root z, after the function you have to put w is equal to u plus iota v and z is equal to x plus iota y. Compare the real and the imaginary part. हर एक क्वेश्चन में जहां पर भी आपको मैपिंग कहता है बनाने के लिए, उस मैपिंग में आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग कर लो. आप आफ्टर कंपेयरिंग द रियल इमेजिनरी पार्ट, उसको जो इक्वेशन बना हुआ है, जैसा फंक्शन बना हुआ है, उसको आप देखिए एक बार वो क्या है. तो वो सबसे पहले मेरे पास बना यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, सॉरी ये जो है यू स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर नहीं, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू लेमडा. तो मैंने x इज इक्वल टू लेमडा सपोज कर लिया. सो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा. एक्स लेमडा इज अ लाइन. कोई भी अगर x की कोई वैल्यू पुट करूंगा मैं, लैम्डा ही कहा मैंने, लैम्डा का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, कुछ भी पुट कर दो आप. तो यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपके पास बन गया है, पर बोला ये आपके पास बन गया लाइन. उसी को आपको प्लेन पर आपको प्लॉट करना, दैट इज कॉल्ड द कॉन्फॉर्मल मैपिंग. इसी को मैपिंग कहा जाता है. हैव यू अंडरस्टूड? ये मैंने x इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया. सिमिलरली यू कैन यूज द सेकेंड वन, दैट इज y इज इक्वल टू 2uv. लेट y इज इक्वल टू b. y को आप b सपोज कर लो. जैसे ही आपने b सपोज कर दिया, तो 2uv जो है 2uv इज इक्वल टू b. 2uv का मतलब हो गया, फिर ये प्रोडक्ट बन रहा है. प्रोडक्ट का मतलब है अगर x को x से इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कर्व शेप बनना. कर्व शेप का मतलब इसलिए मैंने इसको कहा हाइपरबोला. इसको इस इक्वेशन को, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये तब भी हाइपरबोला बनाएगा अगर y को सपोज करोगे, x को सपोज किया तब भी उसने हाइपरबोला ही बनाया. तो सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ w इज इक्वल टू रूट z. ठीक है, अब चलते हैं हम आगे. शुड आई राउट दिस वन? रब कर दो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप देखिए, उसने कहा है क्वेश्चन में, जो प्रूव दैट w is equal to iota z plus 2 upon 4z plus iota. Prove that the relation w is equal to iota z plus 2 by 4z plus iota transform the real axis in the z plane. It transform the real axis in z plane into a circle in the w plane, into a circle in w plane.
So we have to prove that the relation W is equal to iota z plus 2 by 4z plus iota. It's transform the real axis in the z plane into the circle in the W plane. You have to find the center and radius of the point in the z plane which is mapped on the circle of on the center of the circle. हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट भी चाहिए और हमें इसका रेडियस भी चाहिए. How we will form it? देखिए आप बहुत ध्यान से. फंक्शन w इज इक्वल टू आयोटा z. तो सबसे पहला काम ये हो गया, ये w है, w इज इक्वल टू आयोटा z प्लस 2 अपॉन 4z प्लस आयोटा. इसका इनवर्स निकालो आप. हाउ विल मेक द इनवर्स? द वैल्यू of w which is written in the form of z. Now you have to find the z in the terms of the w. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. w4 wz प्लस का w आयोटा इक्वल टू आयोटा z प्लस का 2. z को एक तरफ कर लो. 4 wz माइनस आयोटा z इक्वल टू w आयोटा माइनस का w आयोटा प्लस का 2. टेक द कॉमन पार्ट. z इज इक्वल टू 4 w माइनस आयोटा इक्वल टू 2 माइनस w आयोटा. तो z इज इक्वल टू 2 माइनस w आयोटा अपॉन 4w माइनस आयोटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ z आपके पास में. दिस इज द वैल्यू ऑफ z. यहीं पर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं. द कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट? यू विल टेक द कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट हम कैसे ले सकते हैं? ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब ये हो गया, माइनस जो पार्ट है w का इमेजिनरी पार्ट उसका कर दो रिवर्स. ये हो गया 2 प्लस w का w बार कर दो और ये आयोटा अपॉन जहां w है उसका कॉन्जुगेट कर दो. ये हो गया 4 w का कॉन्जुगेट और इमेजिनरी पार्ट का रिवर्स साइन. ये आपके पास हो गया रिवर्स साइन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल एक्सिस. is transform the real axis in z plane to the circle in w plane. real axis का क्या मतलब है? now the real axis is y is equal to 0 or you can take x is equal to, लेकिन रियल का मतलब ये हो गया, जो अगर ये z प्लेन है और रियल का मतलब होता है x और ये y. अगर मैं x पर काम करूंगा, मैं if I will do work on the x-axis, in that case the y should be equal to 0. So when I am talking about the real axis का मतलब ये हमेशा x-axis होता है. ये real axis का मतलब हो गया x-axis. In that case y should be equal to 0. And if y is equal to 0, you can write 2 iota y should also be equal to 0. Or z minus z conjugate is equal to 0. 2 iota y equal to 0 और z minus z conjugate is equal to 0. अगर आप देखोगे इसके अंदर में कैसे मैंने इसको किया हुआ, z, what is z? z is equal to x plus iota y. and what is z conjugate? ये माइनस है, फिर ये x आ गया, फिर आपके पास में प्लस और ये आयोटा y आपके पास में, क्योंकि z conjugate ये माइनस, z कॉन्जुगेट ये माइनस आपके पास में, और ये ब्रैकेट लगा दिया. जब खोलूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? x से x ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा y. तो ये 2 प्लस का 2 आयोटा y बन जाएगा आपके पास में. सो y इक्वल टू 0 को मैं 2 आयोटा y इक्वल टू 0 और 2 आयोटा y को मैं z माइनस का z कॉन्जुगेट भी लिख सकता हूँ. If I have written this one, then you have the value. तो वैल्यू को पुट कर दिया 2 माइनस का wi अपॉन 4w माइनस का i माइनस z कॉन्जुगेट 2 प्लस w बार i अपॉन 4w बार प्लस iota. This should equal to 0. Now I have to put the value. पहले इसको पूरा सॉल्व कर दो, सारे को सॉल्व कर दो आप. ठीक है, आप देखिए पहले थोड़ा सा दोबारा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. हाँ एक मिनट अब इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए
सबसे पहले क्या है, W इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। W इज इक्वल टू आयोटा Z प्लस 2 अपॉन 4Z प्लस आयोटा। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं W इज इक्वल टू FZ या Z इज इक्वल टू FW, जो भी आपके पास। वो कह रहा है ये ट्रांसफॉर्म करेगा कहाँ से, रियल एक्सिस से। इसका मतलब एक प्लेन का रियल एक्सिस, रियल एक्सिस का मतलब हो गया, अगेन इट इज अ लाइन, उस लाइन से ट्रांसफर होकर दूसरे प्लेन पर अगर हो रहा है तो उसको हम वो कहते हैं, वहां पर वो सर्कल बना रहा है वो। तो एक लाइन से दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं, एक लाइन का मतलब हो गया जेड प्लेन में लाइन बना रहा है, वही लाइन जेड प्लेन से ट्रांसफर होकर डब्ल्यू प्लेन में अगर आता है तो वह लाइन जो है ऑटोमेटिकली सर्कल को कन्वर्ट कर रहा है अपने पास में। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था क्या था, उसमें जेड प्लेन का जो आपके पास लाइन था, वो लाइन डब्ल्यू प्लेन पर जब ट्रांसफर हो रहा था तो हाइपरबोला बना रहा था। तो सिमिलरली हम यहाँ पर जो है वो दो प्लेन पर आपस में डिस्कस करते हैं, वो दोनों प्लेन पर इमेज कैसा कैसा बनेगा आपके पास में। सो I have taken W is equal to iota Z plus 2 upon 4Z plus iota. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने Z की वैल्यू निकाल दिया है। If I get the value of Z, then you must find the conjugate of that Z. How you will find the conjugate of Z? Conjugate Z का मतलब है wherever there is a W, W itself have a imaginary part. W के अंदर में इमेजिनरी पार्ट खुद है, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी का हम रिवर्स साइन लेंगे। तो ये W खुद अपने पास में ये इमेजिनरी पार्ट होता है इसके अंदर, इसलिए इसका कॉन्जुगेट कर दिया। और ये आयोटा यहाँ लगा हुआ है तो यू हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ दैट आयोटा। तो ये माइनस था, माइनस से प्लस कर दिया है इन सेम इन द डिनोमिनेटर, ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, in the question it is given that real axis, if I am taking the point on the real axis, that means the y should be equal to 0, and if y is equal to 0, उसी y को मैं थोड़ा इलेबोरेट करके मैं अपने तरफ से ये 2 iota y equal to 0 कर दिया। हाउ 2 iota equal to 0, उसको थोड़ा सा और मैं अगर z के फॉर्म में लेना चाहूं तो उसको 2 iota y की जगह पर मैंने लिख दिया z माइनस का z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट जो आपने ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है, उसको पुट करो इक्वल टू वो 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आपस में। अब वो देखिए सॉल्व कैसे हो रहा है। जो नाउ लुक हाउ इट सॉल्व। टेक द एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम ले लो। ये आ गया 2 माइनस का डब्ल्यू आई, क्रॉस कर दिया, 4 डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस का आयोटा माइनस 2 प्लस का डब्ल्यू कॉन्जुगेट आयोटा इनटू 4 डब्ल्यू माइनस आयोटा, 4 डब्ल्यू माइनस आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एलसीएम वाला पार्ट जो है वो 0 पर चला गया। नाउ इनटू करो 8 डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस 2 आयोटा माइनस 4 डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्जुगेट आयोटा माइनस प्लस माइनस और आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया डब्ल्यू माइनस 4 टू 8 डब्ल्यू माइनस ऑटोमेटिक प्लस का 2 आयोटा डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्जुगेट और आयोटा। ठीक है, ये प्लस बाहर ये माइनस है। उसके बाद में इसको इससे किया, ये आपके पास में माइनस डब्लू डब्लू का कॉन्जुगेट आयोटा ये रहा, और आयोटा ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस के बाद फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर फिर माइनस, ये माइनस इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करके देखो, आप क्या सा आपके पास में बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास आ गया -4, तो ये -8 डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्जुगेट और आयोटा,
माइनस 7 ये रहा, इन दोनों को एक तरफ ले लिया और ये एक तरफ ले लिया, इसका मतलब हो गया माइनस का 7 कॉमन ले लिया, W माइनस का ये ले लिया, ठीक है। फिर 2 आयोटा ये रहा, 2 आयोटा ये रहा, प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। मैं ये बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसको रब कर रहा हूं मैं। W is equal to what is W? U plus iota V, and what is conjugate? That is U minus iota V. So W dot W conjugate ये ऑटोमेटिकली U स्क्वायर माइनस का V स्क्वायर बन जाएगा प्लस, एंड W माइनस का W conjugate U plus iota V माइनस U plus iota V, ये आपके पास बन जाएगा 2 iota V आपके पास। It is 2 iota V. So it becomes minus 8 U square minus का V square, U square minus V square, ये बन जाएगा प्लस U square plus का V square minus 7 2V iota and 4 iota is equal to 0। फिर इसको चेंज करने की कोशिश करो, माइनस थ्रू आउट कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा U स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/4 V आयोटा हो गया, माइनस 1/2 हो गया, आयोटा इज इक्वल टू 0। U स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर प्लस का 7/4 V, और ये आयोटा भी था आपके पास, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, सब जगह से ये माइनस, ये आपके पास में आ गया U स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर प्लस 7/4 V माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। क्या ये आया समझ में आपको, ये कैसे बना? इसको कहते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास में आ गया। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ आई हैव टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। अब इससे ये बता दो, यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या होता है? माइनस यू माइनस वी। आप बताइए, यू आपके पास में क्या है? कुछ भी नहीं है, ये 0 हो गया। वी आपके पास में क्या है? 7/4। तो वो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? कोई बता सकता है मुझे ये? यस सर। सेंटर, इससे मैं अगर इक्वेशन निकालना चाहूंगा सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर कैसे निकलेगा? नहीं मालूम? ये U स्क्वायर V स्क्वायर प्लस 7/4 V माइनस 1/2 इक्वल टू 0 तो मैंने कर दिया। नाउ आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ द सर्कल आई हैव टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। सो हाउ आई विल फाइंड द सेंटर एंड रेडियस? सेंटर माइनस U और माइनस V, एक तरफ आपके पास 0 और ये बन जाता है माइनस का 7/8, क्योंकि इक्वेशन जो आपके पास है वो 2ux 2vx प्लस 2gy। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस d इज इक्वल टू 0। पढ़ा है कभी आपने? पढ़ा है कभी? स्फीयर पढ़ा है 12th में? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर Yes, sir. प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz माइनस d इक्वल टू 0 या प्लस d इक्वल टू 0। पढ़ा है कभी?
वही सेंटर आपके Yes, पास sir. होता Yes, sir. है 0, हाँ 0 और -2। सो अगर ये 0 और -2 हो गया तो उसको W में कन्वर्ट करिए आप। W इज इक्वल टू क्या, U प्लस आयोटा V। तो U आपने क्या निकाल दिया, U आपने निकाल दिया 0, तो इट इज कॉल्ड 0 माइनस आयोटा 7/8। ये आपके पास निकल गया सेंटर आपके पास में। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या निकलेगा, रेडियस ऑफ सर्कल अगर याद हो आपको, ये होता है यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी होता है। ध्यान है तुम्हें, द रेडियस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। डब्ल्यू यहाँ पर 0 है, यू आपके पास 0 है, वी 7/8 है, तो v इज इक्वल टू, वी कह रहा हूँ रेडियस r इज इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 7/8 का स्क्वायर, तो 49/64। डब्ल्यू खुद 0 है, प्लस का 0 माइनस डी, डी आपके पास -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 वगैरह। तो 49/64 प्लस 1/2 कितना हुआ, ये ऐड कर दो आप। तो 49 में 49 प्लस 32, 49 प्लस 32 81/64, 81/64 रूट 9/8, 9/8। So here the radius is 9/8 आपके पास में आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू निकाल कर दिखा दिया, सेंटर भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको रेडियस भी निकाल कर दिखा दिया आपके पास में। सो U और V, W का काम तो मेरा हो गया, जिसमें आपने W इज इक्वल टू -7/8 आयोटा भी निकाल लिया। अब उस वैल्यू को W के अंदर पुट कर दो तो Z आ जाएगा। हमें Z का भी तो पार्ट निकालना है, ये तो आपने निकाल दिया। W इज इक्वल टू क्या है, तो एग्जैक्ट जो आपके इक्वेशन दे रखा था W इज इक्वल टू आयोटा Z प्लस समथिंग जो कुछ भी था, उसको सॉल्व करते करते हम ले आए W इज इक्वल टू -7/8 आयोटा। ये आप ले आए यहाँ पर, यहीं से सेंटर और रेडियस आपने निकाल दिया है। इसी से हमें क्या करना है, ऑन टू द सेंटर। अब इसको जेड प्लेन में रखकर तब हम जेड का भी जो है, जो सर्कल बना रहा है, उसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे जो भाई वहां से क्या इमेज बना रहा है। क्योंकि क्वेश्चन वापस मैं पढ़ लेता हूँ। इसने कहा है प्रूव दैट द रिलेशन W इज इक्वल टू आयोटा Z प्लस 2 by 4Z plus iota, it transforms the real axis in the Z plane into the circle in the W plane. अब रियल एक्सिस इन द जेड प्लेन, तो रियल एक्सिस इन द जेड प्लेन को तो हमने ले लिया, और वहां से भी आपके पास अभी तक निकला कहाँ है, तो सर्कल हमने बना लिया, डब्लू का सर्कल बन गया। अब इससे हमें जेड का पॉइंट भी तो निकालना होगा, जेड का पॉइंट हमारे पास है नहीं रियल एक्सिस का। अभी तो जो कुछ भी काम आपने किया हुआ है वो सारा डब्लू प्लेन का काम किया हुआ है, हमने एक्स वाई का कोई काम नहीं किया हुआ है। अब यहीं से मैं एक्स वाई का रोल अदा करूंगा, अब वो कैसे करूंगा वो बता रहा हूँ। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, अभी नोटेड दिस हुआ, Yes, sir. तो नीचे से नहीं किया है सब। कर लिया, देख लिया। मैं ऊपर रब करूंगा थोड़ा, डब्लू का सारा काम मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पर जेड का काम करूंगा मैं। अब जेड इज इक्वल टू जो सबसे पहले डब्लू इज इक्वल टू, या यूं मान लो जेड की वैल्यू मैंने निकाला था, क्या था, जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू 2 माइनस का आयोटा डब्लू अपॉन क्या था, 4W माइनस आयोटा, 4W माइनस आयोटा। और W इज इक्वल टू आपने वैल्यू निकाल लिया है, यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या निकाला, माइनस का 7/8 आयोटा, पुट कर दीजिए। Z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा माइनस 7/8 आयोटा, 4W माइनस 7/8 आयोटा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस से माइनस प्लस,
और आयोटा से आयोटा माइनस 2 माइनस 7/8। नीचे आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, तो 4 2 माइनस का 7/2 और ये प्लस का 1, माइनस का 7/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करना है मुझे। ये हो गया a 2 16, 16 माइनस 7, a 2 16, 16 माइनस 7 दैट इज 9। ये तो आ गया 9/8 अपॉन -2 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 7 दैट इज -5/2। तो ये -5/2 आएगा। ये आपके पास आ गया 9/8 इंटू 2/5 और वो अभी आयोटा कहीं लगा दो आप, तो आयोटा मैं यहाँ लगा दिया माइनस। इसका मतलब 2 से ये कैंसिल हो गया 4, तो आयोटा से ऊपर नीचे इंटू कर दो आप, तो कुछ बनेगा ही आपके पास में 16 माइनस 7 दैट इज 9, और ये कुछ गलत तो नहीं हुआ। W ठीक है 7/8 2 माइनस का आयोटा आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा दैट इज माइनस 2 माइनस 7/8। 8 दूना 16, 16 में से 7 चला गया 9/8। ये तो ठीक है। नीचे देखते हैं, 4 2 8 आ गया, ठीक है। अच्छा -7 और -2 -9 -9 आयोटा, तो ये आ जाएगा 9/8 इंटू 2/का -9 आयोटा। 2 से 4, 9 से 9 कैंसिल, तो -1/4 आयोटा, दैट इज आयोटा से ऊपर नीचे कर दिया आयोटा अपॉन 4। सो z इज इक्वल टू I get z इज इक्वल टू आयोटा बाई आयोटा 4। ठीक है, z इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 4 मिल गया मुझे। अब z होता क्या है x प्लस आयोटा y, तो 0 प्लस आयोटा बाई 4। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 निकल गया एंड y इज इक्वल टू 1/4 निकल गया। सो ये जो पॉइंट आपके पास है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/4, तो सेंटर पॉइंट आ गया। इसका सेंटर क्या हो गया 0 और 1/4। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर निकला। एक से हम चले दूसरी तरफ, हमने निकाल दिया इसको। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं मैं इसे। यस सर। देखिए, show that the reason graphically of
the transformation W is equal to Z square। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मैपिंग पर क्वेश्चन हो रहा है। आप देखिए सॉल्व करके देखते हैं क्या है। सबसे पहला काम W is equal to Z square, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड, इसका अंदर 2z आ गया आपके पास में। ये लिख सकते हैं W is फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन except at z is equal to 0। अब इसको वैल्यू पुट कर दो आप, W की जगह पर u प्लस आयोटा v और z की जगह पर x प्लस आयोटा y। u का स्क्वायर u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। रियल और इमेजिनरी, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इज इक्वल टू 2xy। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। जैसे मेरे पास में अलग हो गया u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2xy। अब ये हम बताने की कोशिश करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास हो जाएगा। सो दैट द ओरिजिन मैप्स टू ओरिजिन, इसका मतलब हो गया सो दैट the origin maps to origin। तो क्या मतलब, z प्लेन का x और y 0 है तो w प्लेन का u और v भी दोनों 0 हो जाएगा। तो ओरिजिन से ओरिजिन ही ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। उसके बाद लेट u इज इक्वल टू a, लेट u इज इक्वल टू a, u इज इक्वल टू a का मतलब है वो एक कांस्टेंट हो गया। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये बन गया आपके पास में। और ये तो कांस्टेंट है विच इज अ लाइन, विच इज लाइन, और ये विच इज हाइपरबोला, हाइपरबोला। मतलब मैंने दो पार्ट बनाया हुआ है, उसमें एक में u इज इक्वल टू a मैंने कांस्टेंट लिया हुआ। कांस्टेंट का मतलब आपके पास में हो गया वो कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन 1 2 3 4 कुछ भी, या -1 -2 -3 कुछ भी कर दो, और वही वैल्यू यहाँ पुट गया तो वो बन गया हाइपरबोला। सिमिलरली मैंने यहाँ पॉइंट लिया, क्या था, v इज इक्वल टू 2xy, लेट v इज इक्वल टू b, ये भी कांस्टेंट आपके पास में, दिस इज आल्सो कांस्टेंट व्हिच इज अ लाइन, व्हिच इज लाइन। यही 2xy जो है वो आपका b बन जाएगा, जो कि इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इज अ रेक्टेंगुलर। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक लाइन से दूसरी तरफ अगर हम ट्रांसफर होके जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको क्या बना रहा है, वो हाइपरबोला बन रहा है आपके पास में। अब मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, उसको इमेज बनाऊंगा मैं अब यहाँ पर। आई विल फॉर्म एन इमेज, जस्ट लुक द इमेज हाउ आई विल फॉर्म इट। आई एम रबिंग दिस वन, इसको रब कर रहा हूँ मैं। मान लिया जाए मैंने ये W प्लेन लिया हुआ है, ये U है और ये V है। U को मैंने कई सारी लाइनें बना दी, मैंने एक लाइन ये बना दिया, एक लाइन ये बना दिया, ये बना दिया, ये सारे स्ट्रेट लाइन बना W प्लेन का। ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट आपके पास बना हुआ है। अब मैं यहीं से मैं हाइपरबोला बनाने की कोशिश करूंगा। तो u इज इक्वल टू वो
जितने पॉइंट आप बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से ये चलता रहेगा। ये जेड प्लेन का हो गया। ये जो पॉइंट है ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डैश कर दो आप। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 2xy, ये v1 हो गया 2xy v2 हो गया। ये इस तरीके से आपके पास एक इमेज से दूसरे इमेज पर वो ट्रांसफर होता रहता है। तो आपको इसमें मैपिंग में क्या करना है, इन द डब्लू प्लेन का जो इमेज बन रहा है उस इमेज को ट्रांसफर करोगे सेट प्लेन में। तो एक इमेज से दूसरी तरफ जो बनता है वो आपको बनाना है और पॉइंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर चल लो, उसमें कोई इशू नहीं है आपके पास में। ठीक है, दीज आर द मैपिंग, इसको हम मैपिंग कहते हैं, इसी को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह रहे हैं। तो यही सब सारे पार्ट है जो आपको सॉल्व इस पर करना आपको। ठीक है, ये सारे पार्ट हो गए फिनिश। इसके नोट्स Yes, जो है sir. वो मैं आपको भेज दूंगा, फिर हम आगे की टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे फिर। ओके, आया Yes, समझ sir. में? चलिए, तो इसको Yes, मैं sir. फिनिश ठीक है, करके note, sir. मैं आपको कहाँ तक मैंने भेजा था इसके पीडीएफ याद है? Yes, sir. 16 पेजेस ही भेजे थे सर स्टार्टिंग के। ठीक, 16 पेज से भेज दे, उसके आगे भेज देता हूँ मैं, उसकी आवाज का जो ना भेज देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके 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 देन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके बेटा।